ओके ग्रेट. सो सबसे पहले तो मुझे एक बार सब वीडियो ऑन करो. सिट. आई वांट यू ऑल टू बी सिटिंग इन सम प्लेस, हैविंग योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स रेडी. ठीक है. और सब लोग अपने नोटबुक्स पे यू विल राइट द डेट, यू विल राइट योर नेम एंड द चैप्टर नेम. कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री नाम है चैप्टर का. सो इन योर नोटबुक्स whenever you start writing, write the date, today's date, write your name and then write the name of the chapter. ठीक है. क्योंकि आप लोग फोटोज मुझे भेजते हो ना, देन आई हैव टू लाइक, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं तो मुझे कंफ्यूजन बहुत होता है कि किसका है. सो राइट योर नेम, है ना. क्विकली डू दिस. When you are done, give me a thumbs up, okay? Rohan, बैठ जाओ. मंजुश्री, when you do this, notebook पे लिख लिया सब कुछ? Thank you, Krishna. Thank you, Kedar. Sakshi is writing. Amazing. ठीक है. If your networks are not good, you can switch off your video, okay? Now you can switch off. Just keep writing in your notebooks. Take notes, okay? Shruti, I don't want you to be annotating on the screen. ठीक है. So this is your status. आपकी क्लास का ये है status. All these people, Ayan, Harivital, Ayan, sorry, Ayan is not here, I think. उसका नेम गलत है. हरिविठल, कृष्णा, मोहम्मद, पीयूष, रिया, रोहन, साधना, श्रावणी and Vinayak. These people had attended the class and had submitted the assignment on time. ठीक है, इसलिए इनको 2 stars मिले हैं. सुमित had submitted his assignment but late submit किया, तो I have given him like half star. Okay, so 1.5 star. And Ashwini, Shruti and Sneha tried to complete their homeworks, though they haven't submitted the final work to me. So I have given them some stars. And बाकी सब ये जिनको 1 star है, they were all present in the class, इसीलिए है. Okay. So I hope you have seen your statuses. I will keep a track of everybody who is sending their homework and everybody who is not. ठीक है. So अब से आपको हर बार star rating मिलेगा. ठीक है. Okay. I'll move forward. So हमने कल जो डिस्कस किया था, मैं वापस से उसको बता रही हूँ. हमने पढ़ा था कल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में. We studied about it. We studied why it is important to study sources of history, right? And we studied about 3 types of sources. ठीक है. How many types of sources? 3 types of sources: physical or material source, written source of history, and finally oral source of history. ठीक है. Whenever you see this pen on your screen, it is that you have to take notes. Now I know कि इसमें बहुत ज़्यादा text है. I didn't want to put it, पर मुझे करना पड़ा because you guys don't take notes properly and there is a confusion in whenever you give answers. So that is why इसमें ज़्यादा text है. So don't write completely, सब कुछ मत लिखो, but please note down anything important that you think should be noted down. ठीक है. I will share the notes separately also. मैं ये आपसे share करूँगी PDF, तो आप तब भी कर सकते हो. ठीक है. Now listen very carefully as to what are physical or material sources of history. ठीक है. तो इसके लिए I'll first define a term artifacts. ठीक है. Artifacts क्या होते हैं? जो भी items हम day to day में use करते हैं ना, daily life में छोटे छोटे items, जैसे I am using this specs daily, तो this is an artifact of how I live. ठीक है. तो कोई भी day to day item को artifact बोलते हैं. ठीक है. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के आर्टिफैक्ट्स यूज करते थे लोग. ठीक है. जैसे पहले इफ यू गो ना, आपने अपने दादाजी लोगों को देखा होगा, तो दे यूज्ड टू वेयर धोतीज एंड ऑल दोस थिंग्स, पर अभी इतना कॉमनली यू डोंट सी. तो हर जमाने में हमेशा से कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते थे. छड़ी लेके चलते थे, वो वुडन वाली छड़ी. तो ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स हर जमाने में हुआ करते थे. और यही आर्टिफैक्ट्स जब हमको बाद में मिलते हैं, when historians get these artifacts, they get some valuable information about that time. ठीक है. तो इन आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पे हम टाइम पता कर सकते हैं कि ये कब का आइटम है. ठीक है.
कैसा शेप था, कैसा कलर था, कैसे डिजाइन थे, ये सब से हमको पता चलता है। कल हमने बहुत सारे इमेजेस भी देखे थे जिससे हमें क्लियर होगा कि क्या हो सकते हैं ये आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग आर्टिफैक्ट्स की बात करें और देखने की कोशिश करें कि कौन से आर्टिफैक्ट से हमें क्या मिलता है या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो इफ आई टॉक अबाउट ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है, विल टेल मी व्हाट आर ऑर्नामेंट्स? रिया, रिया, डू यू नो व्हाट आर ऑर्नामेंट्स? Yes, दीदी. ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? Yes, दीदी. Jewels ज्वेलरीज, राइट, अमेजिंग। तो or any ऑर्नामेंट, tool. या ओके, थैंक यू रिया। सो ऑर्नामेंट्स आर बेसिकली ज्वेलरीज जो पहनते ना लोग, या फिर कान में पहना किसी ने या नाक में पहना, जैसे सतप्रीत ने पहना हुआ है नोज रिंग, तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो हर जमाने में अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स लोग पहना करते थे। ठीक है, बहुत पहले अगर आप जाओगे तो सोने के नहीं पहनते थे लोग, बीड्स पहना करते थे, पत्थर के पहना करते थे, अलग अलग टाइप की चीजों के पहना करते थे ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो अलग अलग जमाने में अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, और ऑर्नामेंट से हमको सोशल लाइफ के बारे में आइडिया मिलता है कि कैसे लोगों को रहना पसंद था उस जमाने में, राइट? ग्रेट, डिड यू अंडरस्टैंड? इफ यू अंडरस्टूड गिव मी अ थम्स अप। समझ आया? अगर आप इसको पूरा नोट नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आई विल शेयर दिस पीडीएफ। ठीक है, आई नो कि इसमें बहुत सारा टेक्स्ट है एंड इट वुड बी डिफिकल्ट, बट आई वांटेड यू ऑल टू एटलीस्ट रीड इट वंस। ठीक है, I'll do one thing, I'll ask somebody to read it also. Sumit, can you read the second Yes. second pointer? Diet of the people from remains the of the food grains, seeds and bones of animals found in excavations. Okay, क्या समझ आया आपको सुमित इससे? If you read this, can you understand it? You're on mute, Sumit. कोई नहीं, I'll quickly tell you. Information on the diet of the people. लोग क्या खाना खाते थे और कैसे रहते थे, ये कैसे पता चलता है हमें हिस्ट्री में? थ्रू फूड ग्रेन्स। ठीक है, नाउ फूड ग्रेन्स इतने सालों तक कैसे चल सकते हैं, है ना? अगर आप आज जो गेहूं है ना, इफ यू पुट इट समवेयर, थोड़े टाइम बाद वो खराब हो जाएगा, पर फिर भी बहुत ऐसे पुराने जमाने के हमको फूड ग्रेन्स मिले हैं, क्योंकि पहले, बहुत पहले लोग क्या किया करते थे, पीसने से पहले ना उसको सेका करते थे। ठीक है, अगर गेहूं को पीसना होता था तो उसके पहले वो सेका करते थे और उसके बाद गेहूं को पीसते थे। तो जो सेकने में फूड ग्रेन्स जल जाया करते थे ना, वो उनको हटा देते होंगे, तो वो जो जले हुए फूड ग्रेन्स होते थे ना, वो सब मिले हैं। ठीक है, अगर आप, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उस सिविलाइजेशन का बहुत सारा आइटम हमको मिला है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पुराने जमाने के हमको जले हुए फूड ग्रेन्स मिले, जिनको हिस्टोरियंस ने स्टडी किया, और उससे पता चला कि तब के लोग क्या खाया करते थे। ठीक है, और उन लोगों की जो बोन्स वगैरह मिली है ना, जो दफना दिया करते थे पहले के लोग, तो उनकी जो बोन्स वगैरह मिली है, और एनिमल्स की जो बोन्स मिली है, उससे पता चलता है कि कौन से एनिमल्स उस जमाने में थे, कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर हुआ करता था, और वो क्या खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, क्विकली आई मूव फॉरवर्ड. We also find remains of houses and buildings built in different historical periods. तो कल मैंने एक इमेज दिखाई थी about Indus Valley Civilization. ये हम पाकिस्तान का मेजर एरिया और इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान और गुजरात, इस एरिया में बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। कैसे पता चला था? उस एरिया में बहुत सारे रिमेन्स मिले थे पुराने घरों के और बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह के। तो इस सब से पता चला कि वहां पे बहुत पहले कुछ लोग रहा करते थे और इस तरीके से रहा करते थे। दिस विल रीड इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो पुराने घर और पुरानी बिल्डिंग से हमें उस जमाने का हिस्टोरिकल पीरियड पता चलता है कि कैसे लोग रहते थे और कैसे घर बनाते थे। नाउ हु वुड लाइक टू टेल मी कि कोई ऐसा एग्जांपल? सतप्रीत, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल लगता है क्या पुरानी जमाने की कोई बिल्डिंग से, जिससे आप गेस कर सको कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे? कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो ऐसी कोई बिल्डिंग का? Yes, Satpreet, you are on mute if you are speaking.
हरी विठल, वुड यू लाइक टू टेल अस, ऐसा कोई एग्जांपल, आपको कोई बिल्डिंग ऐसी पता हो जिसको देख के आप बता सकते हो कि उस टाइम पे कैसी बिल्डिंग्स बनती थी, कोई एग्जांपल? I think some monkeys. क्या बेटा फिर से बोलोगे आप? What? फिर से बोलोगे हरी, आपकी आवाज नहीं आई, क्या एग्जांपल दिया? Monkey. 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 मंकी? Yes. मैं बिल्डिंग्स पूछ रही हूँ, बिल्डिंग्स जो आपने, Building. हाँ, कोई ऐसी बिल्डिंग आपने देखी हो जिससे आप गेस कर सको कि किसी जमाने में ऐसी बिल्डिंग्स बना करती थी? Didi, I think that there is fort. Yes. And a Taj Mahal. Wow, amazing. And other countries have that big tower. Yes, amazing. Great. So Hari Vittal has given us so many examples. ठीक है, अगर आप ताजमहल देखो, अगर आज फोर्ट्स देखो, तो क्या आज के जमाने में लोग फोर्ट्स बनाते हैं? नहीं बना सकते ना, इतनी सारी जगह भी नहीं मिलेगी और ऐसा इतना मैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? पर फोर्ट्स को देख के आप गेस कर सकते हो कि पहले लोग जो बहुत रिच हुआ करते थे या जो किंग्स हुआ करते थे वो फोर्ट्स में रहते थे, इतने बड़े बड़े फोर्ट्स में रहते थे या पैलेसेस में रहते थे, या उनको अगर मकबरा बनाना होता था या मंदिर बनाने होते थे तो वो इतने ग्रैंड और लैविश स्टाइल से बनाया करते थे। तो ये सब हम कैसे देख पाते हैं, हम कैसे पता कर पाते हैं? बाय वॉचिंग और बाय द बिल्डिंग्स दैट दे हैड बिल्ट, है ना? तो बिल्डिंग्स भी क्या हो गई, एक फिजिकल सोर्स, ठीक है। प्लस वी आल्सो डिस्कस्ड यस्टरडे कि कॉइन्स, डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स और सील्स जो मिलती हैं उससे भी हम हिस्ट्री बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑर्नामेंट्स हो गए, फूड ग्रेन्स, सीड्स, बोन्स, रिमेन्स ऑफ हाउस, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, सील्स, ये सब कौन से सोर्सेज हो गए? These are the sources of material sources of history. इन सबको देख के हम हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। ओके, आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस कि क्या होते हैं मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? फिजिकल सोर्सेज जो आप देख सकते हो, ठीक है, वो सारे सोर्सेज होंगे। कौन से सोर्सेज? मटेरियल सोर्सेज। ओके, ग्रेट, थैंक यू माऊ। महीन, आपको समझ आया? श्रावणी, अयान, फैजान, कार्तिक, Mohammed, did you understand? Give me a thumbs up if you did. Thank you, Faizan. Thank you, Shravani. Mohammed, Ayan, Karthik, Vinayak, Maud gave it. Okay, great. ठीक है, I'll quickly move forward. I hope you are clear कि physical या material sources क्या होते हैं। जो second type के sources हुआ करते थे, होते हैं, उनको हम written sources बोलते हैं। Written, as the name suggests, लिखे हुए, ठीक है। तो कुछ भी चीज कहीं पे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा तो वो सारे सोर्सेज क्या कहलाएंगे? रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। नाउ फिजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कैन आल्सो बी रिटन सोर्स, है ना? अगर कोई पत्थर है और उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ था पुराने जमाने का, तो वो पत्थर फिजिकल सोर्स भी होगा एज वेल एज रिटन सोर्स भी होगा क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ था, राइट। सो बेसिकली अगर कहीं जैसे पत्थर है या प्लेट है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है या कहीं वॉल्स पे कुछ लिखा है तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। अश्विनी, क्या बोलते हैं हम अगर वॉल्स पे? Inscription. यस, इंस्क्रिप्शन, थैंक यू। इंस्क्रिप्शन क्या होता है अश्विनी? If we have हाँ, क्या होता है इंस्क्रिप्शन? What is inscription? Didi, we write in one stone, we write something, or on the plate we write something that called, मतलब पुराने जमाने में लिखते थे, तो so that it's called inscriptions. Yeah, amazing. Thank you अश्विनी। तो क्या होता है, अगर अपन तो अभी पेपर पे लिखते हैं तो पेन से आराम से लिखा जाता है, लेकिन पहले के जमाने पे लोगों के पास पेपर नहीं होते थे और बहुत पहले जाओ तो फिर तो कुछ भी नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, पॉइंटेड चीजों से, पॉइंटेड पत्थर से या पॉइंटेड टूल से ऐसे ठोक पीट के दे यूज्ड टू राइट। सो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। केदार, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास एंड देन फिर आप कल बोलोगे कि दीदी समझ नहीं आया, राइट। लिसन टू इट केयरफुली, है ना। तो इंस्क्रिप्शन जनरली आपको मिलेंगे वॉल्स पे या फिर रॉक्स पे, है ना, और या फिर कॉपर प्लेट्स पे, ठीक है।
पहले के लोग ब्रिक्स पे भी लिखा करते थे, या फिर जैसे मैंने कल बताया था कि पेड़ होते थे ना, पेड़ का जो आगे वाला लेयर होता है ना, वो जो पेड़ का बार्क होता है उससे कट करके उस पे लिखा करते थे, क्योंकि तब पेपर नहीं हुआ करते थे। सो इफ आई टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, तो बहुत पहले जब स्टोन एज की बात करोगे, जब लोग बहुत बहुत पहले की बात करोगे, स्टोन एज में जाओगे, जब लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, तब लोग पेंटिंग करते थे रॉक्स पे, क्योंकि तब उनसे लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको स्क्रिप्ट नहीं पता थी, दे डिडंट यूज टू टॉक, उनके पास लैंग्वेज नहीं थी, तो वो कैसे एक्सप्रेस करते थे अपने आप को? श्रावणी, कैसे एक्सप्रेस करते थे स्टोन एज में लोग? if Stone Age, painting हाँ, तो on rocks. या अमेजिंग, थैंक यू श्रावणी। ऐसा क्यों करते थे श्रावणी? वो पेपर में क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि उस जमाने में ना पेपर नहीं था। ओके, अमेजिंग। और पेंटिंग क्यों करते थे? व्हाई डिडंट दे राइट? बिकॉज पहले जमाने में पेपर नहीं था और पेन भी नहीं था लिखने के लिए, तो वो पेंटिंग कर रहे थे। अच्छा, लैंग्वेज थी कि नहीं थी? वो कैसे बात करते थे? कोई नहीं, पहले के जमाने में ना लोगों को ऐसे लैंग्वेज नहीं आती थी। हमें तो सब पता है इंग्लिश में ABCD होता है, फिर हम वर्ड्स की स्पेलिंग सीखते हैं, देन वी स्पीक, हमारे पास स्क्रिप्ट है, हिंदी में भी, मराठी में भी, वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस एंड वी स्पीक। पर पहले के जमाने में दे डिडंट यूज टू हैव लैंग्वेज, तो उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होता था, इसलिए वो लिख नहीं पाते थे, सो दे यूज टू पेंट। तो ये होता था बहुत शुरुआत में, जब ह्यूमंस बन रहे थे, जब ह्यूमंस वे डेवलपिंग शुरुआत में। देन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने लैंग्वेजेस बनाना शुरू किया, स्क्रिप्ट्स बनाना शुरू किया, ठीक है। और वो क्या करते थे जब उन्होंने बनाना शुरू किया, तो जो ब्रिक्स होती है ना, ईंटें जो होती है, ईंट या फिर जो पॉट्स होते हैं, जो पॉटरी में पॉट्स बनते हैं, उन सब में पॉइंटेड ऑब्जेक्ट यूज करके लिखना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि तब भी पेपर नहीं हुआ करते थे। तो जब स्क्रिप्ट्स डेवलप हुई धीरे धीरे, तब वो ऐसी सारी चीजों पे उन्होंने लिखना शुरू किया। प्लस वो जो ट्री होता था ना, ट्री के बाग्स को काट के उस पे भी लिखा करते थे। आई हैड शोन यू एन एग्जांपल, कल मैंने बताया था। और इस वाली राइटिंग को बुर्जा पत्रा भी बोलते हैं। दिस वाज आल्सो इन योर क्वेश्चंस, है ना। बुर्जा इज अ टाइप ऑफ ट्री, है ना, बर्ड्स ट्री होता है जो कश्मीर में पाया जाता है। तो उस ट्री के स्टेम के यहाँ काट के उस पे लिखा करते थे, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब थोड़े थोड़े लोगों ने सीखा कि स्क्रिप्ट कैसे बनती, लैंग्वेज कैसे बनती, तब उन्होंने लिखना शुरू किया पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से। तब उनके पास पेन और पेपर नहीं होता था, ठीक है। फिर जैसे जैसे ह्यूमंस एडवांस हुए, वैसे वैसे उन्होंने क्या करना शुरू किया, सिस्टमेटिकली लिखना शुरू किया। तब वो अपने अकाउंट्स बनाने लगे। राजा महाराजा आए तो उनके जो कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी, जो वो दरबार में अपना जो डिसीजंस दिया करते थे, ये सब कोई नोट करने लगा। और क्योंकि राजा महाराजा सब लोग थे, तो वो क्या करते थे, अपनी बायोग्राफी भी लिखवाते थे। बायोग्राफी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? कृष्णा, व्हाट इज अ बायोग्राफी? आई डोंट नो। नहीं पता? किसको पता है बायोग्राफी क्या होता है? श्रावणी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। दीदी, may I tell? हाँ, कौन बोल रहा है? No, I don't know, दीदी। इट्स ओके श्रावणी। यस साक्षी, बोलो बायोग्राफी क्या होता है? Biography, I think, the things, the event of our life written by someone or us. अमेजिंग, ग्रेट। जैसे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी बनी थी, वो MS धोनी की बायोग्राफी थी, ठीक है। किसी की लाइफ के बारे में बताना, किसी की लाइफ स्टोरी पढ़ना। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसकी बायोग्राफी है, किसी को पता है? एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, whose biography is that? किसी को पता है? रोहन, you have raised your hand, do you know? दीदी, महक is come. Okay, Mehak is there. Happy birthday, Mehak. Mehak, please wait for some time. I'll have the class wish for you. Abhi ruko. I'll connect. Okay. हाँ, great. Thank you, Anuradha.
Hari Vittal, would you like to tell the class if you know that whose biography is My Experiments with Truth? कभी सुना है? Have you ever heard? What? किसी ने सुना है? My Experiments with Truth, ये एक नाम की एक बुक है, ये किसकी बायोग्राफी है? Do you know? नहीं, कोई बात नहीं. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ करके एक बुक है. इट इज द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, तो बायोग्राफी मतलब किसी की लाइफ स्टोरी जो कोई और लिखता है. ठीक है, तो ऐसे ही राजा महाराजा जो थे, दे यूज्ड टू हैव अ कोर्ट पोएट जो कि उनकी बायोग्राफी लिखा करते थे. ठीक है, एंड क्योंकि राजा महाराजा लोग वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर इमेज, तो जनरली क्या होता है, आपको हमेशा उनकी बायोग्राफी में उनकी तारीफ ही मिलेगी. ठीक है, क्योंकि कोई थोड़ी ना बुराई करेगा अपने राजा की, राइट? दैट कैन बी डन. सो बायोग्राफीज वगैरह लिखने लगे, सिस्टमैटिकली सब लिखने लगे. और उस टाइम पे भी आपने अगर बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, आपने देखे होंगे, तो वो कपड़े का रोल करके ऐसे खोल के दे यूज्ड टू रीड द ऑर्डर्स, है ना. और राजा महाराजा अपने बारे में बताया करते थे थ्रू कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस. कॉपर की प्लेट हुआ करती थी, उसमें इंस्क्राइब कराते थे जो भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे ना, वैसे कॉपर की प्लेट में दे यूज्ड टू इंस्क्राइब और फिर वो लगवा देते थे. जैसे आजकल बेंचेस पे लिखा होता है ना, सौभाग्य से किसने ये बेंच डोनेट करी है मंदिर को या पार्क को, वैसे ही पहले कॉपर प्लेट्स या बड़े बड़े पिलर्स बनवा के उस पे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, राइट. फिर फाइनली क्या हुआ, धीरे धीरे फिर जब मैन एडवांस होता गया, तब लिटरेचर डेवलप हुई, तब बुक्स आने लगी, रिलीजन, अलग अलग रिलीजन्स की अलग अलग बुक्स आई, फिर सोशल सब्जेक्ट्स पे बुक्स आई, प्लेस, पोएट्रीज, फिर लोग अपने ट्रैवल लॉग्स लिखने लगे, और फिर साइंटिफिक वर्क वगैरह सब नोट होने लगा. तो इस तरीके से राइटिंग की हिस्ट्री पूरी डेवलप हुई. ठीक है, तो फाइनली अब हमारे पास इतना कुछ है कि लोग ब्लॉग्स लिखते हैं ऑनलाइन, दे राइट ऑन डायरीज, दे राइट एवरीवेयर एंड एनीवेयर दे वांट. मैंने आप लोगों को पैडलेट लिंक कल शेयर करी थी, इन दैट लिंक आल्सो यू कुड राइट. सो नाउ यू नो द लैंग्वेज, है ना. सो नाउ you are advanced, you have paper, you have pen, you can write anywhere anytime, you have computers, you can type, है ना. अब ये इतना एडवांस हो गया है. इस तरीके से सब शुरू हुआ था. ओके, रिया हैज अ डाउट, Sumit has a doubt. Okay. Yes, Riya, पूछो. Didi, what do travelogues means? Okay, I'll tell you. Sumit, किसी को पता है क्लास में what is a travelogue? किसी Yes, को पता है? Didi. किसको पता है? Yes, साक्षी बताओ, what is a travelogue? They make videos where they go to travel and they tell every history or great things about that place and what they do and how they invent that. Amazing. Thank you, Sakshi. So, Sakshi, it is not only videos. It may be in written form. It may be in any form. It is just log. मतलब क्या होता है? Note down करना, history time wise किस time पे मैंने क्या किया और क्या नहीं किया. So travelogues is traveling का log, कि वो जब travel करे थे तो मैंने यहाँ से start किया, फिर मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैंने ये देखा, and all describing the place, describing the journey is travelogues. जैसे आजकल लोग travel blogs लिखने लगे हैं या travel vlogs बनाते हैं, वैसे पहले जब लोग ट्रैवल करने आते थे, स्पेशली इंडिया में जब लोग बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसे ट्रैवलर्स आए हैं जो कोर्ट में आया करते थे किंग्स के, दे यूज्ड टू राइट अ लॉट अबाउट व्हाट दे सी, हाउ दे ट्रैवल्ड. तो ये ट्रैवलॉग्स होते हैं. ठीक है, क्लियर रिया? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Didi. Okay. Saleha, you had raised your hand. You had some question. Didi, can I leave because my mobile has 1% charging and our charger is not neat. Okay, Saleha. But please watch the video. I will send the class recording. ठीक है? Okay, And Didi. please keep your phones charged, everybody, before the class. Okay? Didi, my charger is not neat. Yeah, it's okay, Saleha. You can leave. Okay? ठीक है. Next, if you all are clear with what are written sources of history, give me a thumbs up or a heart reaction. Sumit, I can't find Sumit. He had a doubt here. Thank you, Krishna. Sumit, you had a question. Rohan also has one. I'll ask. Yes, Sumit. Sumit.
Ashwini, दीदी Sumit, type on chat box. Yeah. दीदी मुझे किसका तो कॉल आया तो इसलिए मैंने ना वो उठाने के लिए गई थी ना, तो I did not listen you. That's why can you repeat again that? Okay Ashwini, I will after the class. अभी अपन written sources से we'll move forward. I'll explain you again. ठीक है? Okay. Rohan, yes Rohan. बोलो, एक मिनट, I'll unmute you. Yes Rohan, बोलो. कुछ नहीं दिख रहा, लाइट दिख रही है। लाइट नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, मोबाइल स्क्रीन पे लाइट नहीं आ रही, मोमबत्ती जला लो। फुल है, सब फुल है। लाइट मोमबत्ती जला लो। मोमबत्ती नहीं है घर में? दीदी मोमबत्ती नहीं है, दुकान पर जाना पड़े। ओके ठीक है। सो यू वांट टू लीव क्या, ऐसा बोल रहे हो? यू वांट टू लीव? आपकी मर्जी, देखो। See if you can attend, if not just then you can leave. You can send tomorrow your मैं send कर दूंगी but you guys don't watch it. Okay, I know this. ठीक है। Next, Shravani has a doubt. I'll quickly take doubts for 5 minutes and then we will proceed. Okay? Yes, Shravani. दीदी, what is material source? Okay, Shravani, material sources we just studied, जो हमने पिछले slides में पढ़े थे। Material source या physical source एक ही बात होती है। They are anything that you can see or touch. ठीक है, जो तुम देख सकते हो, तुम्हें पता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो कोई भी चीज जो तुम देख सकते हो या टच कर सकते हो वो सब फिजिकल सोर्सेज में आएंगे। जैसे फोर्ट्स हुई, बिल्डिंग्स हुए, कॉइन्स हुए, है ना, ऑर्नामेंट्स हुए, पॉट्स हुए, ये सब चीजें तुम देख सकते हो, यू कैन टच देम, है ना? तो ये सारी चीजें फिजिकल और मटेरियल सोर्सेज में आएंगी। ओके, ठीक है? ओके दीदी। थैंक यू श्रावणी फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। अश्विनी को बहुत नींद आ रही है। अश्विनी, फेस पे पानी डालो एंड गो ड्रिंक सम वाटर। ठीक है। हाउ वी विल नो प्री हिस्टोरिक पीरियड? गुड क्वेश्चन सुमित। सुमित, सी अबाउट ऑल दीज पीरियड्स ना, तो क्या हुआ कि हिस्टोरियंस को ना कहीं कहीं बहुत सारी चीजें या अभी आपने पढ़ा था ना, एस्केवेशंस। एस्केवेशन मतलब खुदाई करना किसी जगह पे जाके। सो ऐसे खुदाई करने के बाद जैसे पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला था? somebody was sorry, हाँ, तो किसी ने वहां जाके देखा होगा, I don't know where exactly, I know about भीमबेटका caves in भीमबेटका caves हैं जो एमपी में है, ठीक है, they are near भोपाल। तो कोई ब्रिटिशर was there who was traveling through a train and उसको कहीं बहुत बड़ी सी ऐसी गुफाएं टाइप्स दिखी। So he went there and he saw कि वहां पे ऐसे गुफाओं में बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। भीमबेटका is a place in MP which is of the Stone Age period, मतलब इतना पुराना। Stone Age was like the starting, जब आप ह्यूमन रेस की स्टार्टिंग की बात करते हो तब। So उस टाइम की उसको वहां पे गुफाओं में पेंटिंग्स मिली। Then he went there with his team and then he studied, तब उसे पता चला। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे ऐसे खुदाई करने पर या ऐसे रॉक्स पे कुछ ऐसे लिखा हुआ रहता है, इंस्क्रिप्शन एंड ऑल। इसको जब स्टडी करते हैं then you gradually come to know about that time। ठीक है, are we clear about this, Sumit? Great. So I'll quickly move forward with oral sources of history। ठीक है, oral का मतलब मुंह से बोला हुआ, मुंह बोला। ठीक है, तो जैसे आपके दादाजी लोगों ने, दादा दादी ने कभी आपको कोई स्टोरी सुनाई हो पुराने जमाने की कि तब तो ऐसा हुआ करता था, या फिर कोई कहानी सुनाई हो, या कुछ ऐसे गाने होते हैं जो लोक संगीत होता है ना, ऐसे कुछ गाने हैं, कुछ बुक्स हैं जो तुम अभी पढ़ते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने सिर्फ सुनी है, ठीक है, जो सिर्फ बोली गई हैं, इनका कोई प्रूफ ऐसा सच नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ये सब जो सोर्सेज होते हैं वो ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होते हैं। ओरल मतलब मुंह से बोले गए, राइट? तो ऐसे फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, ये सब आते हैं ओरल हिस्ट्री में। अब अगर हम ओरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो हमारे वेद हैं, 4 टाइप के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये सारे वेद हैं। जैन जो जैन रिलीजन है, जैनिज्म, उसकी जो बुक्स हैं, या बुद्धिस्ट रिलीजन की जो बुक्स हैं, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री में था। ये सब ना पहले बोले गए थे, किसी ने किसी से सुने थे, एंड देन बाद में किसी ने ये सब लिखे। ठीक है, तो शुरुआत की अगर बात करोगे तो शुरू में दे वर ऑल ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये क्योंकि किसी ने सुने थे और फिर बाद में लिखे,
लिख के अब वो रिटर्न सोर्सेज है, पर पहले वो ओरल ही थे। तो जो भी ट्रेडिशंस, जो भी कल्चर, जैसे अलग अलग व्रत होते हैं आज के डेट में, एंड यू नो कि ये व्रत कैसे करते हैं, आपकी मम्मी लोग करते होंगे, हाउ डू दे नो, ठीक है, किसी ने किसी को बताए होंगे, फिर किसी ने बताए होंगे, फिर किसी ने लिख दिया। तो ऐसे जो भी ट्रेडिशंस, कल्चर्स, ये सारी चीजें, मिथ्स, बहुत सारी झूठी बातें भी होती हैं। मिथ मतलब मिथ्या, राइट, तो वो जो सही नहीं है ना, वो किसी ने बोला है और सब मान लेते हैं। तो जैसे कोई रेवरेंट, कोई बड़ा लोग ऐसे कुछ बोल देते हैं तो बहुत सारे लोग मान लेते हैं, तो बहुत सारी गलत फहमियां भी होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स ना, जो जरूरी नहीं कि सही भी हो बिकॉज किसी ने किसी को बोली थी, ये सब ओरल सोर्सेज में आती है। पर बहुत सारे ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अब रिटर्न सोर्सेज भी हो गए हैं। तो एंशिएंट वैदिक पीरियड के जो वेदास वगैरह लिखे गए थे, जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट जो है, ये सब ओरल ट्रेडिशंस के वाया ही प्रिजर्व हुए थे, क्योंकि उस जमाने में लिखने का कुछ नहीं था। पर वहां पे किसी ने किसी को बताया, फिर उनने किसी अपने बच्चों को बताया, फिर उनने अपने बच्चों को बताया, फिर किसी के बच्चे ने लिख दिया, राइट। तो ऐसे कुछ करके वो हिस्ट्री प्रिजर्व हुई है, राइट। So generally the literature in oral sources is not in written form, and the author किसने actually ये बात कही है ये नहीं पता होता, ठीक है। और this type of literature is preserved by oral tradition and these are called oral sources of history, ठीक है। सुमित, कलयुग वो है जहां तुम रह रहे हो, ठीक है। और ये सब भी कही हुई बातें हैं, राइट। किसी ने कहा कि ये युग है, ये वो युग है, एंड यू डोंट नो किसने कहा। तुम्हें क्या पता किसने कहा था कि कौन से युग होते हैं, यू रेड इट समवेयर। और किसी ने अपने आप भविष्यवाणी तो नहीं की, उसने भी किसी से सुना होगा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वाया हिस्ट्री ओनली। तो किसी ने तो कहा था और किसी को नहीं पता किसने कहा था, ओके। सो ये सब फिर डॉक्यूमेंट बाद में हुई, तो तब वो रिटर्न सोर्सेज बन गई। हाँ, ऋषि मुनियों ने कहा था, बट यू डोंट नो किस ऋषि मुनि ने कहा था और किससे कहा था, राइट। तो ये सारी चीजें बाद में किसी ने लिखी, क्योंकि उस टाइम पे लिख नहीं सकते थे। और सोचो, अगर उस टाइम पे लिखी होगी भी तो जरूरी नहीं है कि सब चीजें तुम्हें आज मिल जाए। तुमने आज की नोटबुक में कुछ नोट किया एंड यू केप्ट इट, ठीक है। सपोज तुमने किसी आयरन बॉक्स में रखी है और बहुत सालों बाद किसी को वो नोटबुक मिल जाएगी, तो उसको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, राइट। लेकिन तुम हर बुक तो नहीं रखते ना ऐसे लोहे के डब्बे में बंद करके, तो बुक्स तो तुम थोड़े टाइम बाहर रखोगे, बारिश होगी एंड खराब हो जाएगा, राइट। तो तुम्हें तब तो नहीं पता चल, फिर किसी को बाद में वो नोटबुक मिलेगी या नहीं मिलेगी, यू कांट गारंटी। पर लोहे के डब्बे में कहीं बंद होके रखी हुई थी तो शायद मिल भी जाए, है ना। सो ऐसे ऐसे हिस्ट्री में लोगों को पता चला एंड फाइनली वो डॉक्यूमेंट हुआ। तो ओरल सोर्सेज कौन से होते हैं? मौखिक, जो मुंह से बोले गए सोर्सेज है, ओके। समझ आया? गिव मी अ थम्स अप। सुमित, योर कलयुग वाला क्वेश्चन इज डन। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू रिया, थैंक यू अयान। और कौन है? फैजान, यश, आदर्श। आर वी क्लियर हियर? If we are clear, Adarsh, can you please tell the class के oral sources of history क्या होते हैं? Adarsh, can you please unmute and tell the class के oral sources of history क्या होते हैं? आदर्श, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Please type on the chat box, Adarsh. चैट बॉक्स पे टाइप कर दो। मंजुश्री, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट? आदर्श, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज टाइप ऑन द चैट बॉक्स, ओके। मंजुश्री, वुड यू लाइक टू टेल द क्लास के ओरल सोर्सेज क्या होते हैं? हाँ, ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होते हैं मंजुश्री? हेलो दीदी। हाँ, ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होते हैं? कैन यू हियर मी? यस दीदी। हाँ, बताओ क्या होते हैं ओरल सोर्सेज? स्पीच दीदी, न्यूज। स्पीच, ओके। न्यूज पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में जाओ, पुराने जमाने में, इफ यू गो एंड टेल मी, देन व्हाट वुड बी द ओरल सोर्सेज ऑफ दैट टाइम? व्हाट वुड बी द सोर्सेज? दीदी, you can repeat again. Your voice is not coming. Voice is cutting again. Okay, Manjushri, no problem. Anybody from the class would like to repeat?
Please raise your hand if anybody from the class would like to tell. Yes, Ayan. Oh, sorry, Sakshi. Yes, Didi. Who is it? I don't know who I have unmuted. Sakshi, is it you? Yes. Okay, Sakshi, would you like to tell the class what are the oral sources? Oral sources are the sources which were spoken in that time life, Yeah. and they are written now by someone by generation to generation. Okay, amazing. Thank you, Sakshi. Ayan, would you like to add to this? Would you like to give example of oral sources from ancient history? The oral sources are the source in which we talk about like folk songs and folk tales. Okay, amazing. So Ayan says that oral sources of history में folk dances और folk literature वगैरह आता है. Folk dances, folk literature क्या होता है? लोकगीत और लोकगीत वगैरह होते हैं ना. महाराष्ट्रियन लोकगीत किसी को आता है? कोई लोकगीत होता है महाराष्ट्र में? किसी को पता है? श्रावणी, do you know any लोकगीत of महाराष्ट्र? कोई लोकगीत पता है महाराष्ट्र का? कभी सुना है? नो दीदी. ठीक है, तो सबका टास्क है. एवरीबडी टॉक टू योर पेरेंट्स एंड आस्क अबाउट लोक संगीत ऑफ महाराष्ट्र. क्या है लोक संगीत महाराष्ट्र का? ठीक है, यू मस्ट हैव नोन द डांस, है ना. एक डांस फॉर्म है महाराष्ट्र का दैट इज वेरी फेमस. किसी को पता है जो फोक डांस है महाराष्ट्र में? एक बहुत ही फेमस डांस है. रिया, डू यू नो? यस. Yes, Didi. It is called Lavani. Yes, amazing. जैसे लावनी is a Maharashtrian लोक डांस, right? It is not तो ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है. ऐसे ही लोक संगीत भी होते हैं. तो ये लोग गाते हैं, लोग डांस करते हैं. ये बहुत पुराने जमाने से ये चलता आ रहा है, राइट? तो कहीं लिखा हुआ नहीं था, किसी को पता नहीं था. These were oral sources, ठीक है, and these still are oral sources. नागालैंड में अभी भी ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं पुराने जमाने के हिसाब से. They have not even advanced. वो अभी भी वैसे ही रहती हैं. तो ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स हैं इंडिया में. एमपी में भी बहुत ट्राइब्स हैं, झारखंड में भी. तो ये जो ईस्ट इंडिया वाला पूरा बेल्ट है, वहाँ पे ऐसे बहुत ट्राइब्स हैं जो अभी भी पुराने जमाने में ही रहते हैं. They are not advanced at all, है ना. अभी भी ऐसे लोग हैं. तो ये सब लोग प्रिजर्व कर रहे हैं अपने ट्रेडिशन को अपने तरीके से. ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर. नाउ आपका जो चैप्टर है, आई टोल्ड यू यस्टरडे कि क्लास 6 में आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे. सो एंशिएंट हिस्ट्री इज प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर अभी तक 700 AD. ठीक है, अभी तक एज इन 700 AD तक, और 8th century इसको कहते हैं. तो पुराने जमाने से लेकर 700 AD तक, मतलब इतने सारे टाइम को क्यूमुलेटिवली आप एंशिएंट हिस्ट्री में कंसीडर करते हो. तो इस टाइम पे सीक्वेंस में बता रही हूँ कि कैसे कैसे ह्यूमन डेवलप हुआ. सबसे पहले ट्राइब्स आए. सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट नागालैंड में ट्राइब्स रहते हैं, नागास. वो अभी भी ऐसे रहते हैं. कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? दे स्टिल लिव लाइक दिस. और बहुत सारे ट्राइब्स हैं अलग अलग. कुछ ट्राइब्स हैं अपने पूरे बॉडी में दे हैव टैटूज, एंड सम ट्राइब्स, सबके अपने अपने ट्रेडिशंस हैं. वो अभी भी इसी टाइप से रह रहे हैं. ठीक है, ये सबसे पहले ह्यूमंस होंगे जो डेवलप हुए थे. वो तब से अभी तक उनके ट्रेडिशंस हैं और ये लोग उनको अभी भी फॉलो कर रहे हैं, राइट. सो एंशिएंट हिस्ट्री में फर्स्ट ट्राइब्स, आर्यंस. आपने ये बहुत फेमस सीरियल था, अभी सोनी में आता था, किंग पोरस के बारे में. पोरस करके एक सीरियल भी आया था. ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ इसने लड़ाई की थी. सो दीज आर दी आर्यंस. ये लोग आए थे बहुत पहले, ये उस जमाने की बात है. देन केम दी स्टोन एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर कॉपर एज, आयरन एज. आयरन एज वो टाइम है जब वेदास लिखे गए थे, हिंदुइज्म पे बुक्स लिखी गई थी, जो अभी मनुस्मृति और ये सब है ना, वो सब उस टाइम पे लिखी गई थी. जैनिज्म, बुद्धिज्म टेक्स्ट. महाजनपदास वर दी फर्स्ट सिटीज. पहले जो सिटीज बने, 16 सिटीज थे इंडिया में, वो उस जमाने में बने थे. फिर अशोका के बारे में जो हम पढ़ते हैं, अशोका वाज ऑफ एंशिएंट पीरियड, राइट. फिर साउथ इंडिया में देयर वाज अ संगम एज जो उसी टाइम पे चला था.
the Cholas, Cheras और Pandyas ये rulers थे. You don't have to write this. This is just additional. I am telling you कि इस sequence में ancient history हुआ था and it is a very big period of time. और हर जगह पे एक साथ नहीं होता था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग हुआ करते थे and they used to live. फिर राजपूत, चौहान, गुप्ता एम्पायर, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, जो बहुत पहले हुआ था, मुगल्स के पहले, जब मुगल्स आए थे उसके पहले का जो पीरियड था, दैट इज ऑल एंशिएंट हिस्ट्री, जो आप 6th में पढ़ोगे, राइट? हाँ, somebody has been replying, Sikandar Porus, yes, Ayan, Maharana Pratap, okay. Oh my God, my internet. Am I still connected? Give me a thumbs up if you can listen to me, because electricity is gone here. Thank you, Dia. Okay, I might not be visible. I am switching off my video. ठीक है, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे क्लास 6 में. ठीक है, तो मैंने जो बोला अभी वो सब यहाँ पे है. ये जो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी थी ना, ऐसा का ऐसा पूरा एक्सकेवेशन में मिला था. तो ऐसे घर थे वहां पे, ब्रिक्स वगैरह मिले, किस तरीके से डिजाइन है वो सब घर, ये सब हमें पता चला था. स्टोन एज में लोग ऐसे रहते थे. मौर्यन एम्पायर, अशोका जो थे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर रूल किया. तो these are all from ancient history. ठीक है, so this is a quick timeline. इंडिया में, इजिप्ट में उस टाइम पे ये बने थे अपने, क्या बोलते हैं, मैं भूल ही गई इनको. What do we say? ये क्या है? What are these? Ayan, do you know what are these? दीदी pyramids. Pyramids, okay. Thank What दीदी? कोई नहीं. पिरामिड्स, ओके, आई फॉरगॉट. थैंक यू फॉर टेलिंग मी, सुमित. हाँ, तो पिरामिड्स बने, चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और माया सिविलाइजेशन भी बहुत फेमस है, इट इज इन ब्राजील. ये सब उस टाइम की बात है. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जो हम पढ़ते आ रहे हैं. तो स्पेसिफिकली अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करें तो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली एंड ऑल्सो नोट दिस डाउन. ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन भी करना. लिसन टू इट केयरफुली एंड रोट इट डाउन, राइट इट डाउन, सॉरी. ठीक है, तो स्टोन एज की जो मैं बात कर रही हूँ, स्टोन एज के बारे में हमें कैसे पता चला? थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस. एक्सकेवेशंस मतलब खुदाई करने से. तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? कैन समबडी टेल मी हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? कृष्णा, आर्कियोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? डू यू नो? Who search for the past things? या आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पास्ट के बारे में सर्च करते हैं. दे डू, ये आर्कियोलॉजिस्ट बनना भी इज अ प्रोफेशन. ओके, एंड बताओ आर्कियोलॉजिस्ट बनना कौन सा प्रोफेशन कहलाएगा? कृष्णा, व्हाट वुड बी द प्रोफेशन ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट? कौन से टाइप का प्रोफेशन कहलाएगा? यस, which type? Occupation. हाँ, क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन. सी, यू कैन रिलेट हिस्ट्री विद ज्योग्राफी ऑल्सो, है ना? ऐसे कनेक्शंस बना के कीप रीडिंग तो आपको पता भी चलता रहेगा. तो आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑल्सो क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन करने वाले लोग. दे डू फाइंड आउट अबाउट हिस्ट्री. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब जाके जगहों पे खुदाई वगैरह करी और उनको ऐसा कुछ मिला ना, कहीं खजाना गड़ा मिलता है या कहीं कुछ मिलता है ना, सो दीज पीपल गो एंड स्टडी. तो वहां से, तो स्टोन एज के बारे में हमें कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस से. ठीक है, उस टाइम पर स्क्रिप्ट्स नहीं हुआ करती थी, इसलिए कोई भी रिटर्न सोर्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास स्टोन एज के बारे में. ठीक है, हमें रॉक्स पे पेंटिंग्स मिलती हैं, बट देयर वाज नथिंग दैट वाज रिटन. ओके, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी. राइट? महीन, आर यू देयर? स्टोन एज में हमें कैसे पता चलता है, कैसे पता चला हमें स्टोन एज के बारे में? यस महीन, केदार, स्टोन एज के बारे में हमें कैसे पता चला? थ्रू कैसे पता चला हमें स्टोन एज के बारे में? पिक्चर्स. कहाँ पे बनी हुई थी ये पिक्चर्स? कहाँ पे बनाते थे ये पेंटिंग्स और पिक्चर्स? बुक. तो स्टोन एज में बुक्स हुआ करती थी केदार.
स्टोन एज मतलब केदार, नाउ लिसन टू द क्लास वेरी केयरफुली, है ना। स्टोन एज मतलब, स्टोन मतलब क्या होता है? स्टोन मतलब, स्टोन मतलब क्या होता है? स्टोन, स्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्थर। पत्थर। तो स्टोन एज की बात करेंगे तो तो स्टोन एज मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर की एज, बट उस जमाने में जब लोग पत्थरों को एज अ टूल यूज किया करते थे, तब वो और कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनके पास पत्थर ही थे, तो पत्थर को शार्प करते थे, उसी से लिखते थे या उसी से हंटिंग करते थे, तो सब पत्थरों की हेल्प से करते थे। तो उस जमाने में डू यू थिंक कि बुक्स हुआ करती थी? नो। है ना। तो फिर वो लोग कहाँ पेंटिंग करते थे? क्या नाम है एज का? व्हाट इज द नेम ऑफ द एज? स्टोन एज, है ना। तो सब कुछ पत्थरों पे करते थे, तो वो पेंटिंग्स भी कहाँ करते थे? पत्थरों पे करते थे, राइट। अब समझ आया? यस। ओके। सो स्टोन एज के बारे में कैसे पता चला? थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ठीक है। फिर ग्रेजुअली जो वैदिक पीरियड था, जब वेदास लिखे गए थे, वो पीरियड अराउंड 1500 BCE, मतलब 1500 BC का जो पीरियड था, उसके बारे में हमको वेदास के थ्रू पता चला। जो अलग अलग वेदास हैं, 4 वेदास हैं, इनके थ्रू हमको उस जमाने के बारे में पता चला। तो लेकिन उस जमाने में भी देयर वाज नो रिटन प्रूफ, उस टाइम पे ये ओरल प्रूफ था, ठीक है। फिर ग्रेजुअली किसी और ने आगे आके लिखा, राइट, तो वो फिर रिटन प्रूफ है। लेकिन शुरुआत में एंशिएंट हिस्ट्री में जो वैदिक लिटरेचर है, जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है, ये सब ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू प्रिजर्व हुए, ठीक है। ये देखो मैंने हाईलाइट भी किया है कि जो वेदास जो थे ना, वो बाद में लिखे गए हैं, ठीक है। पहले दे वर नॉट इन रिटन फॉर्म, ओके। लोग क्या करते थे? लोग सुनते थे, उसको याद करते थे, और दे यूज्ड टू रिसाइट। पहले नहीं श्लोक्स वगैरह होते थे संस्कृत के, दे यूज्ड टू रिसाइट दो श्लोकास। जब गुरुकुल्स वगैरह हुआ करते थे, तो लोग वो याद करते थे, दे डिडंट यूज्ड टू राइट इट, ठीक है। फिर जब उसके आगे जब हम बढ़े, जब हम आगे और आए, तब वेदास जो पोस्ट वैदिक लिटरेचर होती है, जब उपनिषद, रामायण, महाभारत और ये सब लिखे गए थे, पोयम्स, प्लेज, ये सब लिखे गए थे, तो उस टाइम पे भी पत्थर हुआ करते थे या कॉपर प्लेट हुआ करते थे, या फिर जो लोग ट्रैवल करने जाते थे तो वो लिखा करते थे कहीं, तो उस सब के थ्रू हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो जनरली इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से हमको पता चलता है, राइट। फिर फाइनली अगर हम पूरे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो हमें जनरली एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और पॉइंट्स जो एक्सकवेशन से मिले हैं, इनके थ्रू पता चलता है, ओके। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस। यस श्रावणी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। थैंक यू अयान फॉर दैट स्माइल। I hope इसलिए स्माइल कर रहे थे क्योंकि तुम्हें समझ आया। यस श्रावणी। दीदी, I want to answer the question. Oh, which question you wanted to answer? The Stone Age. Stone Age, बताओ फिर से बताओ Stone Age के बारे में। What is Stone Age? The Stone Age is we write the anything in scripts developed and that time to write and Stone Age में स्क्रिप्ट थी कि नहीं थी? no, नहीं थी, राइट। तो कैसे लिखते थे वो? कैसे इमोशंस एक्सप्रेस करते थे? पेंटिंग से। ओके, ग्रेट, थैंक यू श्रावणी, अमेजिंग। सो सबसे पहले हमको पता चला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, थ्रू पेंटिंग्स ऑन रॉक्स। फिर उसके बाद वैदिक लिटरेचर से हमको मिडिल जो पीरियड था, जो एंशिएंट हिस्ट्री का 1500 BCE के अराउंड वाला जो पीरियड था, उसके बारे में हमें वेदास से पता चला। पोस्ट वेदास क्या होने लगा? इंस्क्रिप्शंस वगैरह करने लगे लोग, तो महाभारत, रामायण ये सब लिखी गई थी उस टाइम पे, तो उनके थ्रू हमको पता चला। तो अगर हम बात करें पूरे एंशिएंट हिस्ट्री की, तो जनरली आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और कॉइन्स वगैरह जो मिलते हैं एक्सकवेशन से, उसके थ्रू हमको पता चलता है, ठीक है।
I'll quickly summarize सारे sources जो अभी तक हमने पढ़े हैं. This is in your book also. आप अपनी बुक में ओपन करोगे ना द चैप्टर, तो उसमें आपको बुक में ये टेबल मिलेगा. ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समराइज किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज. यू डोंट हैव टू राइट दिस क्योंकि आपके बुक में है. मार्क इट इन योर बुक एंड रीड इट वंस. ठीक है, आई वुड क्विकली रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ यू टू रीड इट. अयान, क्विकली, मटेरियल सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? रीड इट फॉर अस. Didi, material sources are two types. First is artifacts. Artifact. In artifact there are एक मिनट अयान, एक मिनट. What are artifacts, अयान? artifacts are rock painting. मतलब जनरल टर्म्स में if you have to say the meaning of artifacts तो क्या होता है? Meaning of artifacts. 1 minute. कोई बात नहीं. You were not in the class when I told you artifacts. Artifacts are जो normal day to day use होते हैं ना चीजें, ये सब artifacts होती हैं. Maybe this pen or this specs, है ना. जैसे ये examples भी आप देखोगे ना, तो rock paintings, pottery, objects, beads, ornaments, ये सब day to day में लोग जो use करते हैं उनको artifacts बोला जाता है combined. तो artifacts के types अगर में पढ़ेंगे तो अयान जल्दी से quickly read these types of artifacts. ये सब physical sources या material sources में आएंगे. Yes, Ayan. Rock paintings, poetry, terracotta objects, beads, ornaments, sculpture, metal objects, coins, weapons. है ना. तो एक मिनट, तो ये सब आर्टिफैक्ट्स होते हैं. ये सब मटेरियल और फिजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. अब मुझे बताओ स्कल्पचर्स क्या होते हैं आयान? डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर्स? Sculptures, किसी को पता है what is the meaning of sculptures? Didi, I think where do people live? No, sculptures is मूर्तियां. ठीक है, मूर्तियां वगैरह जो होती है ना, जो बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो सब स्कल्पचर्स में आते हैं. तो जब भी हम रीड करते हैं ना, आई वांट यू ऑल टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दीज थिंग्स कि मुझे किस चीज का मीनिंग नहीं पता. इफ यू डोंट नो द मीनिंग, डोंट जस्ट रिमेम्बर इट ऐसे ही के ऐसे ही. फाइंड द मीनिंग. ठीक है, नहीं तो फिर हाउ वुड यू डेवलप योर वोकैबुलरी, हाउ वुड यू लर्न द लैंग्वेज, है ना. सिर्फ याद नहीं करना है हमें मतलब भी पता करना है. ओके ओके दीदी. जब भी हमें मीनिंग नहीं पता है, आस्क फॉर द मीनिंग. ठीक है, if there is nobody to ask for, search for the meaning. इंटरनेट पे सब कुछ मिलेगा, right? Search for it, but never just learn things for the sake of it. हमेशा मीनिंग पता करो चीजों का. ओके, अब मुझे बताओ टेराकोटा क्या होता है? व्हाट इज टेराकोटा? किसी को पता है व्हाट इज टेराकोटा? किसी को पता है क्लास में? यस और नो, किसी को पता है टेराकोटा? अगर नहीं पता है तो किसी ने पूछा क्यों नहीं मुझसे टेराकोटा? अगर मैं कुछ भी बोल दूंगी तो यू लर्न एवरीथिंग क्या? हाँ, मतलब दीदी कुछ गलत भी बताएगी तो यू लर्न एनीथिंग दैट दीदी विल टेल. नो दीदी. नहीं ना. टेराकोटा क्ले, पुट्टी, आई डोंट नो, पुट्टी नहीं होता है, क्ले से जिससे पॉट्स वगैरह बनते हैं ना, मटकी वगैरह बनती है, राइट. तो पुराने जमाने पे तो प्लास्टिक वगैरह नहीं होता था, तो खिलौने वगैरह जो होते थे ना, वो उस मिट्टी से बनते थे. इट इज अ टाइप ऑफ क्ले, इट इज अ टाइप ऑफ मिट्टी, राइट. जिससे रेड सॉइल पॉट्स वगैरह बनते हैं. हाँ, रेड सॉइल, जो जिससे पॉट्स वगैरह बनते हैं ना, मटके वगैरह जो होते हैं जिसमें पानी भरते हैं हम, तो वो उस जमाने में उस चीजों के ऑब्जेक्ट्स बनते थे, टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स बनते थे, और वही अवेलेबल हुआ करते थे. ठीक है, ग्रेट, थैंक यू अयान. विनायक, प्लीज रीड द स्ट्रक्चरल रिमेन्स. ठीक है, वेयर इज विनायक? आई कांट फाइंड इट. I'll just quickly ask you to unmute. Yes, Vinayak, quickly read करो. Vinayak, are you there? Okay, since we are lacking time now, I will quickly read. अच्छा, Vinayak, you have unmuted. Quickly read करो Vinayak, structural remains. This structural remains caves,
houses, stupas, rock cut caves, temples, churches, mosques, pillars. Okay, this is mosque, Vinayak. Mosque मतलब Didi, I don't know what is mosque. किसको पता है mosque मतलब क्या होता है? Who will tell me what is the meaning of mosque? Yes, Krishna. Where Muslim people go to pray their God. Yes, so there is, like Hindus mein there are temples, Muslim mein there are mosques, for Christians they go to churches, right? So these are different types of prayer places, right? So Vinayak, that is mosque. Okay. Now what are rock cut caves? Caves kya hoti hain? What are caves? Shravani, do you know what are caves? Cave and 2 minutes, Didi. 2 minutes ही तो नहीं है. Okay, caves are गुफा. गुफाओं को caves बोलते हैं. ठीक है, किसको बोलते हैं caves? गुफाओं को. स्तूपास क्या होते हैं? स्तूपास होते हैं बुद्धिस्ट रिमेन्स जो होते हैं. अगर आपने नहीं देखा, आयान सर्च फॉर एंड एवरीबडी सर्च फॉर सांची स्तूपा. कभी सुना है सांची स्तूपा के बारे में? सांची स्तूपास वो जगह है जहाँ पे बुद्धा की जो रिमेन्स थे अलग अलग जगहों पे दे हैव उनको रखा हुआ है एंड देन दे हैव बिल्ड अ स्तूपा अराउंड इट. ठीक है, तो वो बुद्धिज्म में दे आर वेरी फेमस. इफ यू हैवंट हर्ड ऑफ इट, सर्च फॉर सांची स्तूपा. ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत है महाराष्ट्र में. केदार, सिट प्रॉपरली एंड स्टडी. ऐसे लेट के मैं गाने नहीं गा रही हूँ ना, यू नॉट जस्ट लिसन टू मी, ऐसे ही सिट एंड स्टडी. ओके, क्विकली आई विल टेक 5 more minutes of your class, guys. आपकी दूसरी कोई क्लास नहीं है, I know, so you can like wait for 5 more minutes. Faizan, quickly read the written sources of history. Faizan. Faizan, are you there? Yash. Ayan, can you please check for Faizan if he's there? Yash, can you please read the written sources of history? Yash, you are not audible to me. You have unmuted yourself, but you are not here. I don't know. Quickly. Yes, Didi. Written sources padho. What are written? What are the written sources of history? Quickly. Inscription on Harappa. Harappa. Seals. Seals. Yes. V-E-A-I-C. Weights. I-T-E-R-A-R-E. L-I-T-E-R-A-T-R-E. Literature. Vedic literature. Okay. What is the meaning of the word literature, Yash? Do you know? Yes or no? Just quickly tell me. No problem if you don't know. No. Okay. No problem, Yash. Thank you for reading. I'll ask somebody else to quickly read. Yeah. Krishna, do you know what is the meaning of the word literature? Yes, the story or something written in different languages. Okay, so literature basically कोई भी written work हुआ ना, जो पूरा combined written work होता है, that is literature. तो वैदिक literature में सारा वेदास वगैरह जो थे ना, उपनिषद, ये सब आएंगे. So this is all Vedic literature. This is written form, written source of history. Harappa is basically a site. हमने कल movie guess करी थी ना, मोहनजोदारो.
So उसमें भी that is a place, Mohenjo-daro is also a place like Harappa, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. कृष्णा, क्विकली रीड द रिटन सोर्सेज के बच्चे. Mesopotamia clay tablets. Yes. Manuscript copy of Mahabharata and Ramayana. Just a second, Krishna. Mesopotamia is a place. Mesopotamia एक पुराने जमाने की जगह का नाम है, ठीक है. So Mesopotamia की जगह पे कहीं क्ले के, जो क्ले से बने हुए जैसे स्लेट्स होती है ना, अपनी स्लेट, वैसे क्ले टैबलेट्स मिले हैं उस जमाने के. So that is also a written source. फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉपीज ऑफ महाभारत और रामायण. तो रामायण और महाभारत की जो कॉपीज मिली हैं पुराने जमाने की, दैट इज आल्सो अ रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री. यस कृष्णा. Jain and Buddhist literature, writing of Greek historic travelogues. Yes. Writings of Greek historians, जो ग्रीक उस टाइम पे बहुत एडवांस हुआ करता था, वहां के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने लिखा है अलग अलग जगहों के बारे में. तो उनने जो लिखा है उससे भी हमें पता चलता है, और जो लोग घूमने आए थे तो उनके ट्रैवलॉग से भी हमें पता चलता है. ठीक है. आई विल क्विकली रीड अहेड. थैंक यू कृष्णा. देन ट्रैवलॉग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स. इंडिया में भी बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर्स घूमने आए, तो उनने जो लिखा उससे भी हमें पता चलता है. बुक्स ऑन ग्रामर्स, पुराण और इंस्क्रिप्शन. सो ये सब रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं. I will thank you Ayan for tagging for Faizan. Faizan, if you are here, quickly read the oral sources of history. Faizan. Okay, cool. Anuradha, yes, read the oral sources. Oral sources. The Vedic, Buddhist, and Jain literature of ancient India was preserved by oral tradition. It is now available in the written form. Even so, the oral tradition is still alive when oral compositions are used for history writing. They are included in the oral source. अमेजिंग. थैंक यू अनुराधा. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर थे एंशिएंट टाइम पे, दे वर प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन. फिर वो जनरेशन बाय जनरेशन लोगों ने बताए, एंड देन फाइनली वो किसी ने लिखे. सो नाउ दे आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, बट दे वर प्रिजर्व्ड एज अ ओरल ट्रेडिशन इन एंशिएंट हिस्ट्री. ठीक है. ओके, फाइन. नो प्रॉब्लम. थैंक यू अयान. सो दिस इज व्हाट इट इज इन योर बुक आल्सो. यू कैन रीड थ्रू इट. ठीक है. If you guys have time, if you have 5 minutes more, give me a thumbs up. I'll quickly finish this chapter. अगर 5 minutes है तो give me a thumbs up. Thank you guys. Okay, so I'll quickly complete this. This is the only slide left. This is the only topic in the chapter which is left. So I'll complete it. So what are the precautions that should be taken while writing history? ठीक है. तो जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आपको, सपोज सतप्रीत है एंड सतप्रीत हैज रिटर्न अ डायरी फॉर हरसेल्फ. उसने कुछ लिखा अपने बारे में, एंड देन 100 साल बाद किसी को मिला और सपोज उसने लिखा कि मैं पुणे की, आई वाज अ प्रिंसेस ऑफ पुणे. ठीक है. अब 100 साल बाद किसी को वो नोटबुक मिली और उसमें उसने पढ़ा कि सतप्रीत वाज द प्रिंसेस ऑफ पुणे. तो क्या उसको मान लेना चाहिए क्योंकि सतप्रीत ने लिखा हुआ है? क्या उसको मानना चाहिए? यश, तुम्हें क्या लगता है? थैंक यू श्रावणी. हाँ, अगर श्रावणी ने आज अपनी नोटबुक में लिखा कि आई एम द प्रिंसेस ऑफ पुणे, और लाइक 100 इयर्स बाद किसी को वो डायरी मिली एंड उसने पढ़ा कि श्रावणी ने, सॉरी सतप्रीत ने लिखा है कि वो तो पुणे की प्रिंसेस थी, तो क्या उस बंदे को मान लेना चाहिए? यस और नो? No. हाँ. Okay, sorry, I couldn't hear you. आपने क्या बोला? Yes or no? No. Okay, क्यों नहीं मानना चाहिए यश? क्योंकि पहले नोटबुक
ओके यश, नो प्रॉब्लम, आई विल क्विकली टेल कि ऐसे अगर मैं अपनी नोटबुक में कुछ भी लिख दूं और किसी को बाद में मिलता है और वो पढ़ ले और हर किसी की बात मानने लगेंगे तो फिर तो हो गया बंटाधार, है ना। कोई भी कुछ भी लिख दे ऐसे तो अपने बारे में, मैं भी लिख दूं कुछ भी और 100 साल बाद लोग मान ले, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा कभी भी हिस्ट्री लिखी जाती है तो जो सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के वो बहुत रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए। अगर सतप्रीत ने लिखा था दैट शी इज द प्रिंसेस ऑफ पुणे और सतप्रीत के साथ साथ ऐसे 10-15 या 100 लोगों की नोटबुक्स पे और मिला के सतप्रीत इज द पुणे प्रिंसेस, तो फिर कहीं केस बनता है कि हाँ सच में ऐसा होगा, ठीक है। तो हमेशा हिस्ट्री को लिखने से पहले बहुत प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हिस्ट्री की कोई भी बात को मानने से पहले बहुत रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिक होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो हमेशा इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक ऑल द प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जनरली ओरल सोर्सेज जो होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते। अगर रिटर्न सोर्सेज हैं कहीं पे लिखा हुआ है तो दे आर मोर रिलायबल, दे आर कंसिडर्ड मोर रिलायबल। और फिजिकल सोर्सेज है फिर तो मतलब हाँ आपको पता है कि ये तो होगा ही, राइट। सो दैट इज व्हाई हमेशा हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए हिस्ट्री लिखने से पहले। हमेशा देखना चाहिए क्रिटिकली कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है और कब लिखा है, राइट। जैसे मैंने कल बताया था कि हिस्ट्री में 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंडिविजुअल, सोसाइटी, डेट एंड प्लेस, है ना, टाइम एंड प्लेस। तो किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सब पता करना जरूरी होता है, ठीक है। और जो भी कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हो वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट की बेसिस पे होना चाहिए। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड है तो वो बहुत जेन्युइन होगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड था। पर किसी इंडिविजुअल का रिकॉर्ड है, जैसे रोहन ने अपनी रैप लिखा और 100 साल बाद किसी को वो रैप मिला, तो पता नहीं रोहन फेमस था कि नहीं, कैसे पता चलेगा, एक जगह लिखा था। पर अगर रोहन की यूट्यूब वीडियोस मिले बाद में किसी को और यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे और लाइक्स थे, तो हाँ फिर मान सकते हैं कि रोहन वाज वेरी फेमस, राइट। तो हमेशा जो सोर्सेज होते हैं वो मल्टीपल जगह से क्रॉस चेक्ड होने चाहिए, है ना, और उसके बाद फाइनली सोर्सेज मिलने चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत क्रिटिकल होती है, ठीक है। हिस्ट्री इज वेरी क्रिटिकल। आज जो तुम पढ़ रहे हो सकता है अगर किसी ने गलत लिखा होगा हिस्ट्री में और तुम वो पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ गलत ही बताओ, राइट। तो ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता। हमेशा बहुत जेन्युइन और ऑथेंटिक सोर्सेज से मल्टीपल जगह क्रॉस चेक करने के बाद हिस्ट्री लिखनी चाहिए। ओके, आर वी ऑल क्लियर? गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ गया है तो। थैंक यू यश, थैंक यू कृष्णा। ओके, अमेजिंग। I'll stop the screen share. If you all are clear, I am sure which you all are, ऐसे तुम लोग कह रहे हो, then very good. Our chapter is finished. There is one Google form. ठीक है, इस बार मैं लिखने का असाइनमेंट कुछ नहीं दे रही हूँ। I am giving a Google form. It has only the questions जो हमने आज पढ़े हैं उसी पे based है वो Google form. I don't want to remind कि मुझे बोलना पड़े किसी और से. I will not say. जैसे मैंने शुरू में स्टार रेटिंग बताए थे, I'll show you the star rating color also in the next class. Okay, I am just sharing the form to you. कोई please open करके मुझे बता दो कि can you see this or not. ये विनायक, this is the assignment. Quickly open the Google form and check if you can see it and quickly fill it. अभी भर दो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. There are not many questions. ज़्यादा लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करना है. Do it now if you can. आज ही कर देना. ओके, आई डोंट नो व्हाट टाइम शुड आई गिव इट टू यू गाइस. मुझे नहीं समझ आता.